देवी अहल्याबाई होलकर का 300वें जन्म जयंती का ये वर्ष आज स्टार्ट हो रहा है। उस व्याख्यान और पुस्तक के विमोचन का आज जो प्रोग्राम है भारतीय विचार मंच का, उसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। भारतीय विचार मंचनो थोड़ो परिचय हूँ अहींया आपीश आप सौने। आनो भद्राः क्रतो यंतु विश्वतः एटले के विश्वभरमांथी आवता शुभ विचारो प्राप्त थाय। आ ध्येय वाक्य पर भारतीय विचार मंच छेल्ला 30 वर्षोथी गुजरातमां वैचारिक क्षेत्रे कार्यरत छे। भारतीय विचार मंचनी दर वर्षे द्विदिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी थती होय छे, जे एक नेशनल लेवलना सेमिनार होय छे, जेमां राज्यभરના જુદા જુદા રાજ્યમાંથી લોકો આવતા હોય છે। છેલ્લે અમારો જે નેશનલ સેમિનાર થયો એ ઉદયમાન ભારત વિષય ઉપર થઈ ગયો। ભારતીય વિચાર મંચના વિવિધ કેન્દ્રો ઉપર વાચક ગોષ્ઠી, ચર્ચા સત્ર અને વ્યાખ્યાન પણ રેગ્યુલર થતા હોય છે। યુવાનો માટે યંગ થિંકર્સ મીટની પહેલ ભારતીય વિચાર મંચે કરેલી છે। એક યજ્ઞ કાર્યશાળા અને યુવા કાર્યશાળા ભારતીય વિચાર મંચ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં ઘણા યુવાનો જોડાયેલા છે। હાલમાં ભારતીય વિચાર મંચ કુલ 75થી વધુ પુસ્તકોનું પ્રકાશન પણ કરી ચૂક્યું છે તથા ઘણા રિસર્ચ પેપરનું પણ પ્રકાશન કરી ચૂક્યું છે। ભારતીય સંસ્કૃતિને લઈને ભારત હવે વિશ્વમાં વિશ્વગુરુ બનવા જઈ રહ્યું છે, તો આપણા સૌની એ ફરજ છે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ભારતીય મૂલ્યોને આપણે સાચવવા જોઈએ અને એ સંસ્કૃતિ અને એના મૂલ્યોને સાચવવા માટે, એને પ્રસ્થાપિત કરવા માટે ભારતીય વિચાર મંચ હંમેશા કાર્યશીલ રહ્યું છે। કાર્યક્રમને આગળ વધારતા હવે હું શ્રી ઈશાનભાઈ જોશીને નિવેદન કરીશ કે તેઓ આપણા વક્તાને લઈ અને મંચ ઉપર આવે। આજનો જે વિષય છે દેવી અહલ્યાબાઈ હોલકર કા વિચાર વિશ્વ, તેમના વક્તા છે શ્રી ડૉક્ટર વિકાસ દવે। તેમનો હું થોડો પરિચય આપવા માંગીશ। આપે હિન્દી સાહિત્યમાં એમફિલ અને બાલ પત્રકારિતામાં પીએચડી કરેલું છે। અત્યારે સાહિત્ય એકેડેમી મધ્યપ્રદેશ શાસન ભોપાલમાં તેઓ ડિરેક્ટર છે અને 30 વર્ષોથી દેવપુત્ર બાલ માસિક સંપાદકમાં પણ સંપાદક તરીકે કાર્ય કરે છે। 50થી વધુ રિસર્ચ પેપરનું પબ્લિકેશન પણ થયેલું છે। આ સિવાય તેમનો પરિચય ઘણો લાંબો છે। હવે હું શ્રી ઉમેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણા વક્તાનું સ્વાગત કરે। શ્રી ઈશાનભાઈ જોશી ભારતીય વિચાર મંચ ગુજરાત પ્રાંતના મહામંત્રી છે। તેમને હું કાર્યક્રમની પ્રસ્તાવના મૂકવા માટે વિનંતી કરીશ। સૌને નમસ્કાર। આજના આ પાવન દિવસે આપણે બધા ભેગા થયા છીએ। આપણા બધા માટે ગૌરવની વાત છે। 31 મે આથી 300 વર્ષ પહેલાં આપણું 300મું જન્મજયંતિ વર્ષ છે। લોકમાતા અહલ્યાબાઈ હોલકર એક પશુપાલક પરિવારમાંથી એક મહિલા એક સામાન્ય ઘરની અંદર જન્મ ધારણ કરી અને હોળકર પરિવારમાં લગ્ન કર્યા। હોળકર પરિવારના પુત્રવધુ તરીકે એમણે પોતાના જીવન કર્મની શરૂઆત કરી। જીવનમાં અનેક એવા પ્રસંગો આવ્યા જે નિયમિત રૂપે ભારતીય મહિલાઓના જીવનની અંદર, માતાઓના જીવનની અંદર આવતા જ હોય, પણ એમના જીવનની અંદર એમના પુત્રનું મૃત્યુ, એમના પતિનું મૃત્યુ, આ બધું જ એમના આંખોની સામે થયું। 30 વર્ષ એમણે રાજ્ય શાસન ચલાવવા માટેની એમને ઈશ્વરે તક આપી અને એ તકના ભાગરૂપે આપણે એમનું જે આખું જીવન કર્મ જોઈએ, એમનું વિચાર વિશ્વ, આપણા જે વિષય આજે રાખ્યો છે એમનું વિચાર વિશ્વ, એટલે માત્ર અહલ્યાબાઈનું જીવન ચરિત્ર એની આજે આપણે ચર્ચા નથી કરવાના, કારણ કે જીવન ચરિત્રની ચર્ચા તો નિયમિત રૂપે ઘણા બધા મહાનુભાવોની થતી જ હોય। એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો, કયા દિવસે થયો હતો, માતા કોણ હતા, પિતા કોણ હતા, આ નાના બાળકો માટેનો વિષય। આપણે એનાથી આગળ ઉઠીને એમના વિચારોનું આખું જે વિશ્વ છે એની ચર્ચા આજથી કરવાની શરૂઆત કરી રહ્યા છીએ। આ કાર્યક્રમનું મહત્ત્વ એ છે કે અહીંયાથી એની ચર્ચાની શરૂઆત થવાની।
આજે ચર્ચા પૂરી નથી થવાની, આજે ચર્ચાનો પ્રારંભ થશે. 1 વર્ષ સુધી આપણે આ આખું 300મું જન્મજયંતિ વર્ષ ઉજવીશું. અનેક અલગ અલગ પ્રકારના કાર્યક્રમો આ નિમિત્તે આપણે કરીશું. એના ભાગરૂપે આજનો આ પહેલો કાર્યક્રમ છે. આજના કાર્યક્રમ નિમિત્તે આપણે મંચ દ્વારા આપણે એવું નક્કી કર્યું કે એમના જીવન ઉપરના 2 પુસ્તકોનું પ્રકાશન આપણે આ વર્ષે કરીએ. તો પહેલું એક પુસ્તક જે સામાન્ય કોઈ પણ વ્યક્તિ વિશેષને જાણવા માટેનું, એમના જીવન ચરિત્રને જાણવા માટેની જે પ્રાથમિક બાબતો હોય છે, એવું આજનું આપણું એક પુસ્તક છે, એનું લોકાર્પણ અહીંયા થશે. બીજું જે પુસ્તક છે એનું લોકાર્પણ આપણે ઓગસ્ટ મહિનામાં કરવાના છીએ. એમની 13 ઓગસ્ટે એમની પુણ્યતિથિ આવશે. તો એ વખતે આપણે ઓગસ્ટ મહિનામાં એ પુસ્તકનું લોકાર્પણ કરીશું. એ પુસ્તક જરા શોધ ગ્રંથ પ્રકારનું પુસ્તક છે. એટલે એની અંદર અહલ્યાબાઈની એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સિસ્ટમ, એમની જ્યુડિશિયલ સિસ્ટમ, એમણે મહિલાઓ માટે જે સ્ત્રી ચેતનાને જાગૃત કરી હતી, ઉદ્યોગ સાહસિકતા વિકસાવવા માટેના જે પ્રયત્નો કર્યા હતા, કૃષિ એમણે ઇન્દોરની અંદર એમના માળવા ક્ષેત્રની અંદર જે કૃષિ માટેના એમના ઉત્તમ પ્રયાસો હતા, આ બધા જ પ્રયાસોને સાંકળી અને એક શોધ ગ્રંથ પ્રકારનું એ પુસ્તક છે એ બહાર આવશે. આવા 2 પુસ્તકોનું આપણે પ્રકાશન કરવાના છીએ. એમાંથી પહેલા પુસ્તકનું લોકાર્પણ આજે થશે. પુસ્તકનો પરિચય આપણને આગળ મળશે અને પુસ્તક વેચાણની અંદર પણ આજે આપણી પાસે ઉપલબ્ધ છે. એ સિવાય આખા વર્ષ દરમિયાન આપણે આ વિષય ઉપરના કેટલાક વક્તાઓ અને અધ્યયનકર્તાઓને તૈયાર કરીશું. અધ્યયન સમૂહ પણ આના માટેનો એક ગઢ પણ બનશે. આવતીકાલે આપણે કેટલાક આ પ્રકારના લોકો, જે લોકો અલગ અલગ સ્તર ઉપર અને અલગ અલગ જગ્યા ઉપર આ વિષય લેવા માટે જવાના છે, એવા બધા લોકોની સાથે પણ એક પહેલું સત્ર, અધ્યેતા વક્તા પ્રશિક્ષણનું સત્ર એવું આપણે કરવાના છીએ. કારણ કે આ વિષય વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચે એ આપણા માટે પણ અગત્યનું છે. અને આપણે જે વિચાર વિશ્વ સાથે સંકળાયેલા છીએ, ભારતીય વિચાર મંચ, કારણ કે વિચાર મંચ એ એક સંગઠન છે, એ એક આખું વિચાર વિશ્વ છે. રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘના પૂજનીય સરસંઘચાલકજીએ પણ આજના દિવસે 300મી જન્મજયંતિ વર્ષ નિમિત્તે એક પોતાનો મેસેજ સમાજ માટે મૂક્યો છે. અહલ્યાબાઈનું જીવન ચરિત્ર કેમ એવું છે કે જે બધા સુધી પહોંચવું જોઈએ. ગયા વર્ષે 350મું વર્ષ હતું, હવે હજી ચાલી જ રહ્યું છે, હવે 2-5 દિવસ પછી પૂરું થશે. શિવાજીના રાજ્યારોહણનું વર્ષ, એની પણ આપણે ઉજવણી કરી હતી. એ નિમિત્તે પણ કાર્યક્રમો કર્યા હતા. તો આ પ્રકારના કાર્યક્રમો નિયમિત રૂપે આપણે કરીએ છીએ. તમે બધા નિયમિત આવો છો એટલે જાણો જ છો. તો આજનો આ કાર્યક્રમ આ નિમિત્તે એક પહેલો કાર્યક્રમ છે. બીજું વિશેષ, આપણે બધાએ પત્રિકા જોઈ જ છે. પ્રતિભાબેન આપણા જે મેયર છે એ આવવાના છે. એમને થોડું મોડું થવાનું છે, પણ આપણો આગ્રહ આપ સૌ જાણો છો, નિયમિત રૂપે આપણે કાર્યક્રમ કરીએ છીએ. સમય ઉપર કાર્યક્રમ શરૂ થાય આપણા માટે જરૂરી છે, એટલે આપણે કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી દઈએ છીએ. પુસ્તકનું લોકાર્પણ પહેલાં થવાનું હતું, એ થોડું પછી થશે. પહેલાં આપણે વ્યાખ્યાન જોઈ લઈશું. તો એ આવશે એ પછી આપણે આગળનું એ આ કાર્યક્રમ લોકાર્પણનો કરીશું. અત્યારે આપણે વ્યાખ્યાનનો કાર્યક્રમ પહેલાં કરીએ છીએ. આપ સૌ આવ્યા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નમસ્કાર. હવે હું આજના આપણા વક્તાને નિવેદન કરીશ કે તેઓ તેમનું વક્તવ્ય આપણી સામે રાખે. नमस्कार। भारतीय विचार मंच के आज के अपने इस विचार यज्ञ में, जैसा कि ईशान भाई ने प्रारंभ में भूमिका में आप सबके मध्य एक प्रकार से कार्यक्रम की पूर्व पीठिका रखी और हम सब लोगों को ध्यान में आया कि पुण्य श्लोक माता अहिल्याबाई का यह 300वां जयंती वर्ष है और हम सबका सौभाग्य यह है कि हम एक ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम को यहाँ संपन्न कर रहे हैं जो एक प्रकार से इस पूरे वर्ष की समस्त गतिविधियों का प्रारंभ है। जैसा वाक्य उन्होंने प्रयोग किया कि ये शुभारंभ है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक वर्ष जब संपन्न हो जाएगा, आज संयोग से 31 मई को ही हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हैं और 31 मई से लेकर अगले 31 मई तक ये सारे के सारे कार्यक्रम संपन्न होना है। तो स्वाभाविक रूप से इस एक वर्ष के बाद भी देवी अहिल्याबाई का संपूर्ण विचार विश्व हमारी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा, ऐसा मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यह केवल जयंती वर्ष का समापन होगा और इसलिए कई बार इस प्रकार के आयोजनों पर जब अपने विचार रखने का अवसर आता है तो मैं हमेशा इस बात को रेखांकित करता हूं
कि भारतीय दर्शन और भारतीय भाषाएं दरअसल बड़ी बारीकी से कुछ शब्दों का प्रयोग करती है जो विकल्प संभवतः विश्व की अन्य भाषाओं के पास नहीं होते। और इसलिए इस तरह के आयोजनों का यह समापन होगा अगले वर्ष 31 मई को, यह मानने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ पर हिंदू दर्शन में एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग हमारी बहनें करती हैं। सामान्यतः 16 सोमवार का या अन्य प्रकार का कोई व्रत जब हम बहनें रखती हैं तो वे एक बार के 16 सोमवार समाप्त होते हैं तो उसका समापन नहीं करती, वे कहती है यह उद्यापन है। और उद्यापन इसलिए किया जाता है ताकि अगले 16 सोमवार फिर से प्रारंभ किए जा सके। और ये कब तक चलते हैं इसकी कोई सीमा नहीं होती। कभी कभी तो बहुत अत्यधिक अवस्था की वयोवृद्ध माताएं, दादी नानी घर में कहती हैं कि मैं जब छोटी सी थी 8 साल की तब मैंने इस व्रत को प्रारंभ किया था। कोई भी व्रत हो सकता है और मृत्यु पर्यंत उस व्रत का पालन करना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो केवल प्रारंभ की यह भूमिका इसलिए रख रहा हूं कि यह पुण्य श्लोक माता देवी अहिल्याबाई का जो जयंती वर्ष है यह एक वर्ष का उपक्रम नहीं है, बल्कि उनके विचार विश्व को आदर्श मान करके भारतीय जनसामान्य किस प्रकार से अपने जीवन की रूपरेखा तय कर सकता है, हमारे जीवन की दिशा क्या हो सकती है, हमको किस पथ पर चलना है, उसके मार्ग संकेत क्या क्या हो सकते हैं। हाईवे पर हम सब लोगों को कई बार बड़ी सुविधा लगती है कि बड़े बड़े अक्षर में हरे रंग के बोर्ड, उस पर सफेद रंग के अक्षर देख करके हमको लगता है ये हाईवे बनाने वालों ने कितना अच्छा किया, अक्षर बड़े हैं, रात्रि में भी चमकने वाले हैं। हम लोग जब देवी अहिल्याबाई का जीवन चरित्र देखते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि उनके जीवन का प्रत्येक कण कण और क्षण क्षण इसी प्रकार का एक मार्ग संकेत है। ये कोई छोटी बात नहीं होती। शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र को हम सब लोगों ने जब पढ़ा होगा तो हमारे ध्यान में आया होगा कि शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ते समय हमको लगता है कि उनके एक एक गुण को अगर हम सब मिलकर आत्मसात करें तो शायद हम भी वैसे ही महापुरुष बन सकते हैं। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े विचारक हुए, दार्शनिक हुए और बहुत अच्छे कवि भी थे, H.W. लॉन्गफेलो। उनकी अंग्रेजी की एक कविता है, मूल कविता उद्धृत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें वो कहते हैं कि महापुरुषों का जीवन दरअसल रेत का जो तट होता है, समुद्र के किनारे रेत का तट होता है, जब लहरें आती है वापस लौटती है तो एक समतल तट हमको दिखाई देता है। और व्यक्ति जब उस पर चलता है तो उसको उन्होंने संकेत में, प्रतीक में कहा कि दरअसल यह जो रेत है यह रेत समय है और इस समय की रेत पर महापुरुषों के पदचिन्ह बने हुए रहते हैं, जैसे हमारे पैर के निशान बनते हैं। तो मैं आज इस कार्यक्रम में दरअसल उन्हीं पद चिन्हों में से कुछ पद चिन्हों की चर्चा आप सबसे करने वाला हूं। आदरणीय ईशान भाई की उपस्थिति है, मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम कर रहा हूं। प्रतिभा बहन अभी हम सबके बीच में उपस्थित होंगे और उनकी उस व्यस्त दिनचर्या में उनका समय देना ही मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े महानगर के प्रथम नागरिक के कर्तव्यों को हम सब जानते हैं। तो हमारी चर्चा लगातार जारी रहेगी। उनकी जब उपस्थिति होगी हम उनकी उपस्थिति को प्रणाम करके अपने इस विषय को लगातार आगे जारी रखेंगे। हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं और उन्होंने कहा कि जब राम पर कोई साहित्य लिखना होता है तो एक बहुत सुंदर पंक्ति उन्होंने कही कि राम तुम्हारा नाम स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। दरअसल राम पर लेखन करने में व्यक्ति सहज रूप से साहित्यकार हो जाता है, कवि हो जाता है। ठीक उसी ढंग से जब देवी अहिल्याबाई पर हम बोलना प्रारंभ करते हैं तो हमारा वक्तृत्व अपने आप में कब व्याख्यान हो जाता है हमको पता नहीं लगता। अन्यथा मेरे जैसे छोटे से बच्चे को आप मध्य प्रदेश से बुला करके यहाँ गुजरात की राजधानी में इतने वरिष्ठ जन के बीच में बैठ करके सुने, ये मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई बहुत अच्छी बात है, आप जैसे अनुभवी जनों के बीच बैठ करके मुझे माइक पर बोलना। लेकिन निश्चित तौर पर जिस चरित्र पर हम चर्चा कर रहे हैं वह चरित्र बहुत उदात्त है, इसलिए यह वक्तव्य स्वतः बड़ा हो जाएगा। देवी अहिल्याबाई को जब हम याद करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में यह आता है कि प्रातः स्मरण जब हम कहते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि हम सतियों को याद करते हैं, देवियों को याद करते हैं और द्रौपदी, कण्णगी, गार्गी, मीरा, दुर्गावती तथा इस प्रकार से उस श्लोक को हम बोलते हैं। हमारे ध्यान में दो बातें आती है। आखिरकार
देवी अहिल्याबाई के सामने दो विशेषण लगाए जाते हैं, यहां पर भी आप देख रहे हैं, पुण्य श्लोक और लोक माता। अब ये जो पुण्य श्लोक होते हैं, संस्कृत वाङ्मय में जब उनके चरित्र को मैंने पढ़ना प्रारंभ किया, मुझे लगा ये पुण्य श्लोक का विशेषण उनके ही आगे कैसे लगा, और कौन कौन लोग हुए। आप में से भी किसी के मन में ये जिज्ञासा आती होगी। केवल एक संदर्भ संपूर्ण संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त होता है, और संस्कृत आख्यानों में कहा गया पुण्य श्लोक नल राजा, पुण्य श्लोक जनार्दन। फिर देवी अहिल्याबाई एक सामान्य से गड़रिये परिवार से निकली हुई बेटी, सुदूर महाराष्ट्र के चोंडी ग्राम में जिनका जन्म होता है, वहां से चलकर के होलकर साम्राज्य की महारानी बनना और उनको पुण्य श्लोक कहना। दरअसल इस पुण्य श्लोक विशेषण की जो जड़ है, वह जड़ दूसरे विशेषण में समाहित है, लोक माता। लोक कौन होता है? लोक हम जैसे सामान्य जन होते हैं। लोक शास्त्रों की बात माने ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन शास्त्रों को अनिवार्यतः लोक की बात मानना होती है, ये हमारे पुरखों ने ऋषि परंपरा से हमको बताया है। तो ये जो पुण्य श्लोक का विशेषण दिया, ये लोक ने दिया, किसी संस्कृत श्लोक में नहीं है, लोक में है। और इसलिए वो माता भी है तो लोक की माता है। और इसलिए जनसामान्य ने देवी अहिल्याबाई को कितने ऊंचे स्थान पर रखा, इसकी केवल एक कल्पना आपको देता हूं। देवी अहिल्याबाई जब अंतिम समय पर अत्यधिक रुग्ण अवस्था में थी, उनके जीवन का एक बड़ा काम माना जाता है, भिल्ल समाज के जो लोग, जनजाति के जो लोग अपराध वृत्ति में संलग्न हो गए थे, उनको रोकने का एक बड़ा काम उन्होंने किया था। और आश्चर्यजनक रूप से, आगे मैं उसकी बात जब करूंगा तो आपको बताऊंगा, अपने जीवन का एक कितना बड़ा दाव खेलना, जिसको हम कह सकते हैं, कितना बड़ा जुआ खेला उन्होंने एक प्रकार से उस युग में इस बात की घोषणा की कि मेरी बेटी से विवाह वही व्यक्ति करेगा जो शौर्य में उदात्त अवस्था का हो। उस युग के सबसे बड़े संकट को हल करने वाला, बाहुबल से अपने तलवार के बलबूते पर जो हल करेगा, वह मेरी बेटी से विवाह करेगा। और आश्चर्यजनक रूप से मुक्ताबाई का विवाह, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह उस व्यक्ति से किया जिन्होंने इस भिल्ल समस्या का निदान निकाला। स्वाभाविक रूप से इसके लिए कई उस अपराधी वृत्ति को करने वाले कई लोगों को मृत्यु की प्राप्ति भी हुई होगी, ये हम समझ सकते हैं। लेकिन उसी भिल्ल समाज के नायक, उस युग के जो उनके नेतृत्व करता थे, अंतिम समय पर माता अहिल्याबाई का दर्शन करने के लिए इतने लालायित हुए कि जब राजकाज करने वाले चाकरों ने उनको मना किया कि इस समय वे अत्यंत रुग्ण हैं, आप उनके दर्शन नहीं कर सकते, तो इस बात से परेशान होकर के और मेरी उम्र माता को लग जाए ऐसा कहकर के कटार सीने में भोंक करके उन्होंने अपने प्राण दान कर दिए। आप कल्पना कर सकते हैं कैसा चरित्र रहा होगा लोकमाता का। दरअसल पुण्य श्लोक और लोकमाता की बात करते हुए मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं कि ये दोनों की दोनों बातें माता अहिल्या को यूनिक बनाती है, अपने आप में एकदम अलग। सामान्य जन से हमको कई बार लगता है राजा महाराजा तो होते रहे, मैं बार बार इस बात को रेखांकित करता हूं कि शिवाजी की बात करते हुए, बाजीराव पेशवा की चर्चा करते हुए, या अन्य जितने राजा हुए उन सब की बात करते हुए हमारे देश में रोमिला थापर छाप इतिहासकारों ने इसको मराठा सल्तनत का नाम दिया, मराठा पावर कह करके संबोधित किया। लेकिन देवी अहिल्याबाई के विचार विश्व की चर्चा करते समय हम सब लोगों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि यह भारतवर्ष की मराठा पावर नहीं थी, यह भारतवर्ष की हिंदू पावर थी। इस बात को हमको हमेशा रेखांकित करना चाहिए। दरअसल यह हमारे समाज को, हमारी शक्ति को, हमारी मर्यादाओं को, हमारी शुचिताओं को विभाजित करने के षड्यंत्र के तहत किया गया। यदि यह मराठा पावर था तो इन रोमिला थापर छाप साहित्यकारों से, इतिहासकारों से कभी पूछ कर देखिए कि देवी अहिल्याबाई के सर्वाधिक लोक कल्याणकारी कामों में जिस एक काम को रेखांकित किया जाता है, कलकत्ता से लेकर काशी तक की पक्की सड़क का निर्माण, आप बताइए इसकी आवश्यकता माता अहिल्या को क्यों पड़ी? क्या वो पश्चिम बंगाल की रानी थी क्या? क्या वो काशी की रानी थी क्या?
आप 12 ज्योतिर्लिंग चले जाइए, 7 सप्तपुरियों में चले जाइए। हम जैसे लोग जब सोमनाथ के दर्शन करने के लिए आते हैं, और कई बार तो मुझे आश्चर्य लगता है, हम लोग मध्य प्रदेश में भेड़ाघाट एक स्थान है नर्मदा के उद्गम स्थल के थोड़े बाद। हम सबका सौभाग्य कि 2 राज्य जो आज इस समय चर्चा में सम्मिलित हैं, मैं वहां से आता हूं जहां से मां नर्मदा, मां रेवा प्रकट होती है, और वहां आकर के बात कर रहा हूं जहां आकर के मां नर्मदा सागर में प्रवाहित होती हैं अंतिम रूप से। उस नर्मदा के भेड़ाघाट के दोनों ओर संगमरमर के पर्वत है। चिलचिलाती हुई धूप में जब आप घूमते हैं तो ऐसा लगता है कि तेज फ्लैश की लाइट पड़ रही है, जैसे आमतौर पर वीडियो कैमरे की लाइट्स पड़ती है। खूब तेज प्रकाश रहता है, एकदम धवल प्रकाश। नदी में हम लोग घूम रहे थे, ठीक नर्मदा मां के बीच में एक चौकोर चबूतरा बना हुआ, उस पर एक शिवलिंग की स्थापना। नाव वाले को हमने कहा कि जरा चलो वहां पर थोड़ा सा नर्मदा माई का जल चढ़ा लेते हैं। आप कल्पना करिए, ठीक नर्मदा नदी के बीच में उस चबूतरे पर एक शिला लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है कि इसका जीर्णोद्धार माता अहिल्याबाई ने करवाया था। वहां से लेकर सोमनाथ तक, वहां से लेकर 12 ज्योतिर्लिंग तक। और यह सब काम कौन कर रहा था? यह सब काम जिसको आप तथाकथित रूप से भेड़ बकरी चराने वाला समाज कहते हैं, धनगर समाज। कितने गौरव की बात है। मैं अभी उस विषय की ओर नहीं जाना चाहता, अन्यथा विपर्य होगा, लेकिन भारतीय समाज का समरसता का उदात्त स्तर यदि आपको कहीं देखना है तो वो माता अहिल्याबाई की राजशाही में आप देख सकते हैं। जिन लोगों के मन में ये भ्रांति होती है कि राजा रजवाड़े तो वो लोग होते हैं जो राजपूत होते हैं, कई बार भिन्न भिन्न जातियों के विषय में तरह तरह के संकेत देकर बात की जाती है। उस समय देवी अहिल्याबाई का महारानी बनना, सूबेदार मल्हार राव दरअसल एक युद्ध अभियान में निकले हुए थे। इंदौर से चल करके वे बाहर निकले। महाराष्ट्र के जिस ग्राम की मैं बातचीत कर रहा हूं, उस चोंडी ग्राम में पहुंचे। सेना ने एक जगह पर जाकर के विराम किया, और मैं आदरणीय प्रतिभाबेन हमारे बीच उपस्थित हो गई हैं। मैं अत्यंत सम्मान और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत करता हूं। भारतीय विचार मंच के इस आयोजन में आपका हृदय से स्वागत है। अपने इस महानगर की प्रथम नागरिक, और आज जितना चर्चा में मुझे पता लगा, हम सब करतल ध्वनि से आदरणीय महापौर जी का अभिनंदन करते हैं। वीरा जी, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ईशान भाई को और उमेश भाई अग्रवाल को मैंने बातचीत में कहा भी कि वास्तव में पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई की चर्चा करना इसलिए और सार्थक हो जाएगा कि इस सत्र की अध्यक्षता महापौर के रूप में हमारी बहन करने वाली है। और बहनों को सचमुच इस बात को लेकर के गौरव की अनुभूति होती है कि इस राष्ट्र ने मातृशक्ति को जो सम्मानजनक स्थान उस युग में प्रदान किया, वह परंपरा आज तक अक्षुण्ण बनी हुई है। तो मैं बातचीत कर रहा था कि सूबेदार मल्हार राव जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अचानक एक घोड़ा बेकाबू होकर के, जिस सेना का पड़ाव वहां पर डला था, तो सेना का एक घोड़ा अचानक बेकाबू होकर के सैनिकों के हाथ से छूट गया। बिना लगाम का घोड़ा तेज गति से दौड़े जा रहा था। अचानक देखा कि कुछ छोटी छोटी बालिकाएं वहां पर रेत के शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर रही है। कितना स्वाभाविक दृश्य। एक घोड़ा बेकाबू दौड़ करके आ रहा है, यदि उसके पैरों में भी कोई बच्ची आ गई तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इस भय से सारी की सारी बच्चियां एक तरफ भाग गई। लेकिन मल्हार राव ने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एक बिटिया जो शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा कर रही थी, अचानक वह उकड़ू इस ढंग से झुकी कि उसने अपने दोनों हाथ और अपने दोनों पैरों के बीच में उस शिवलिंग को रख लिया। घोड़ा उनके पास से तेजी से दौड़ते हुए चला गया। मल्हार राव ने वहां के स्थानीय एक जो जमींदार थे उनसे पूछा कि बेटी है कौन। उसने बताया कि ये हमारे यहाँ के एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी बेटी है और इसका नाम अहिल्या है। मल्हार राव पास में गए, उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी ये जो घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा था, तुमको भय नहीं लगा क्या? मृत्यु का भय नहीं हुआ? अहिल्याबाई ने एक बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, मृत्यु तो अवश्यंभावी है, मृत्यु तो सबको आना है, लेकिन जिस कृति का निर्माण हम करते हैं उस कृति को अपने जीते जी अपने आंखों के सामने नष्ट होते देखना, और वह भी साक्षात महाकाल की प्रतिमा जिसकी मुट्ठियों में स्वयं काल है,
उनकी पूजन करते हुए मुझे काल का भय कैसे हो सकता था, और इसलिए उस शिवलिंग की रक्षा करना, चूंकि उसका निर्माण मैंने किया था। ये बाल्यकाल का स्वभाव देख करके मल्हार राव ने तुरंत उन सूबेदार से कहा, जाकर के माता पिता से बातचीत करो, मेरे बेटे के लिए इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती। और एक सामान्य ग्राम की वह बालिका उस साम्राज्य के परिवार में बहू बनकर के पहुंची, जो मूलतः महाराष्ट्र के होल नामक एक ग्राम से, यह अंग्रेजी का होल नहीं है, महाराष्ट्र में एक परंपरा है, वहां के जो सरनेम होते हैं, जो गोत्र होते हैं, वो ग्राम के नाम के साथ जोड़ करके बनाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के कई ग्रामों के, कई स्थानों के नाम से बुरहानपुर कर कहते हैं, शुजालपुर कर कहते हैं। हमारे यहाँ के स्थान नहीं है अभी भी, इंदूर कर कहा जाता है। इंदौर को पहले मराठी में इंदूर कहा जाता था, वहां से जो लोग निकले हैं वो इंदूर कर। तो होल ग्राम से निकले हुए महाराष्ट्र से वे होलकर, तो होलकरों के यहां पर वास्तव में वे पहुंची, और विवाह हो जाने के बाद उनके ध्यान में आया कि वे जब अपने ससुराल पहुंची तो उनको एक बात ध्यान में आई कि उनके जो पति हैं वे दरअसल व्यसन में घिरे हुए, नशा करने का एक अभ्यास था। आमतौर पर उस युग में ऐसा लगता है, राज परिवारों में यह दुर्गुण सहज रूप से आ जाता होगा, लेकिन देवी अहिल्याबाई जब कम अवस्था की थी तब से उन्होंने अपने पति को सही दिशा देना प्रारंभ की, बार बार आग्रह करना प्रारंभ किया कि आपको यह नशा नहीं करना चाहिए। और इस काम के लिए उनको सहयोग किनका मिलता था, तो अपने ससुर का, अपनी सास का। ऐसा कहा जाता है कि शिवाजी के जितने गुरु रहे उनमें अधिकांश उनके परिजन रहे, जिन्होंने शिवाजी को तैयार किया, जिनको वो गुरुतुल्य मानते थे। माता अहिल्याबाई जिनको गुरुतुल्य मानती थी उनमें उनके सास और ससुर भी रहे। ये बात दरअसल माता अहिल्याबाई के विचार विश्व की चर्चा करते समय हम लोगों को यह ध्यान में लाती है, इन दिनों हमारे देश की मातृशक्ति ने सास बहू के बीच के संबंध, ससुर बहू के बीच के संबंधों को एकता कपूर के सीरियलों से आकलन करना प्रारंभ कर दिया है। हम लोगों को ऐसा लगने लगा है कि वहां जो कुछ होता है, सास बगल में एक जहर की शीशी लेकर के हमेशा घूम रही है, बहू जो है वो पता नहीं किसी की प्लेट में क्या मिला रही है, किसी की सब्जी में क्या मिला रही है, और किसी का तीसरा पति, किसी की चौथी पत्नी। ये भारतीय समाज नहीं है। भारतीय समाज का उदात्त चरित्र अगर आपको देखना है तो आपको देवी अहिल्याबाई के उस विचार विश्व में दिखाई देता है। मुझे लगता है कि देवी अहिल्याबाई को जितना सशक्त सास ससुर ने किया, वैसा अन्यत्र उदाहरण हमको कहीं और दिखाई नहीं देता। आपको एक उदाहरण दूं तो आपको आश्चर्य लगेगा। मल्हार राव के संबंध में मैंने बताया कि मल्हार राव का वास्तव में बहुत उन पर आशीर्वाद था, राजकाज उन्होंने ही सिखाया था। उनके बेटे खंडेराव जो कि उनके पति थे, एक दिन अनायास राज दरबार में पहुंच गए और नशे में धुत थे, जाकर के राज सिंहासन पर बैठ गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि मुझे शराब के लिए राशि चाहिए। देवी अहिल्या की उपस्थिति राज दरबार में थी। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आपको नशे में राज सिंहासन पर बैठना नहीं चाहिए, दूसरी बात राजकाज की राशि में से इस प्रकार के व्यसन के लिए कोई राशि नहीं दी जाती। यह यदि आप प्राप्त करके दुरुपयोग करते हैं तो यह अपराध करते हैं, और आपको जो राशि अपने निजी खर्च के लिए दी गई थी वह समाप्त हो गई है समय से पहले, यह दोष आपका है। पति उस युग का, हम 300वां जयंती वर्ष मना रहे हैं, इसको याद रख करके आप सुनिए। 300 साल पहले एक महिला अपने पति को राज दरबार में चुनौती दे रही है। खंडेराव ने सारे के सारे बही खाते फेंक दिए, कहा जिन बही खातों में अपने राजा को देने के लिए पैसा नहीं है वो बही खाते में नहीं मानता। अहिल्याबाई ने दृढ़ता से उनको सिंहासन से नीचे ला करके सेवकों से कहा इनको ले जाइए। सिंहासन पर बैठ करके कहा चूंकि इस समय राजकाज में व्यवधान करने का अपराध इन्होंने किया है, जैसे आज हम कहते हैं ना शासकीय कार्य में बाधा, उस युग में शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले को दंड देने का प्रावधान था। अहिल्या माता ने कहा खंडेराव पर इतनी राशि का जुर्माना करती हूं। यह जुर्माना कर देने के बाद जब खंडेराव अत्यधिक नाराज हुए तो घर जाकर के एक पत्नी की भूमिका में आकर के उन्होंने कहा मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी पत्नी हूं, और इसलिए आप पर जो जुर्माना किया गया है वह जुर्माना दरअसल भरने का आधा अधिकार मेरा भी है। मैं इस जुर्माने की राशि को अपनी निजी राशि में से भरूंगी। दोनों तरफ उदात्त चरित्र, दोनों तरफ आदर्श। पत्नी भी हूं, लेकिन जहां पर राजकाज की बात आएगी, अपने ससुर के द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास को अक्षुण्ण बना करके राजकाज को चलाना यह मेरी पहली जवाबदारी है। कई बार हम लोगों को लगता है कि वास्तव में
इस प्रकार का काम करने वाली बहनें, मैं अभी पिछले दिनों जब इंदौर में एक कार्यक्रम में इस विषय पर बोल रहा था, वहां पर चूंकि युवा बहनें अधिक मात्रा में थी, मैंने उनसे कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं आज की किसी बेटी को यह कहा जाए कि तुमको शस्त्र संचालन सीखना है, आज के युग की बेटी को 2024 में। दीदी तो महिला आयोग का काम देखती हैं, इसलिए पता है, रोज इस तरह के विषयों से पाला पड़ता है। हम सब लोग कहते भी हैं कि बहनों को सशक्त बनना भी चाहिए, उनको जूडो कराटे सिखाना, उनको शस्त्र संचालन सिखाना, जिस तरह का वातावरण चल रहा है। अगर ये सब सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, तो एनडीए सीडीएस की तैयारी करना पड़ेगी, क्योंकि आर्मी में जाते हैं तो इस तरह की तैयारी करते हैं। आप अचानक कह दें कि एनडीए सीडीएस की तैयारी करती रहो, लेकिन तुमको इस बीच में ऑडिट भी सीखना है, वो बेटी क्या कहेगी कि अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है। ऑडिट करने का अर्थ है कि मुझे सीएसीएस की तैयारियां करना पड़ेगी। तो अचानक वो मना कर देगी कि ये 2 विषय मेरे बस के नहीं है। अचानक आप उसको कह दीजिए कि नहीं, ये 2 विषय तो तुमको पढ़ना ही है, इसके साथ तुमको मैनेजमेंट की भी पढ़ाई करना है। उस युग की 300 साल पहले की उस बेटी ने एक भी काम के लिए अपने ससुर को मना नहीं किया। उनको कहा कि तुमको राजकाज देखना है, इसका लेखा भी तुमको संभालना है। लेखा इतनी बारीकी से संभाला कि जब मल्हार राव एक युद्ध के अभियान से लौटे तो एक दिन पूरा उस हिसाब किताब को देखते रहे। आश्चर्यजनक ये बात ये थी कि पूरे दिन में उनको एक भी स्थान पर त्रुटि प्राप्त नहीं हुई। वे एक प्रकार से ऑडिटर बनकर के उस पूरे हिसाब किताब को देख रहे थे। संध्या को जब भोजन की थाली पर बैठे तो अहिल्या ने पंखा झलते हुए कहा, बाबा आज दोपहर में जब आप देख रहे थे, एक पृष्ठ पर जहां पर किसानों का व्यय आया राज्य के द्वारा, वहां पर आपके माथे पर 2 सल मुझे दिखाई दिए। ऐसा क्यों हुआ? ससुर के माथे पर 2 सल देख करके इस बात का आभास कर लेना कि मेरे अकाउंट्स में कहीं कोई त्रुटि रही है, यह उस युग की बेटी कर रही थी। मल्हार राव ने कहा कि बिल्कुल गलती नहीं थी, मुझे केवल ऐसा लगा कि उस कार्यकाल में, उस समय हमारी जो आय थी, उस आय का जितना प्रतिशत किसानों पर व्यय करना था उससे कुछ अधिक व्यय हुआ था। मुझे केवल यह लगा, लेकिन मैंने सोचा कि हिसाब की गलती नहीं है, केवल राज्य काज की गलती है, इसलिए मैं बाद में पूछ लूंगा। कहा बाबा दरअसल यह हुआ कि इस बार ओले भी गिरे और इस बार सूखा भी पड़ा। किसानों को, अन्नदाता को यदि आज हम सहयोग नहीं करते तो स्वाभाविक रूप से ये अन्नदाता आर्थिक रूप से पूरी तरीके से पिछड़ जाते, अगले वर्ष की फसलें प्रभावित होती। अगले वर्ष में जब ज्यादा धन धान्य उत्पादित करेंगे तो वे हमारे इस कर को दुगना दे देंगे। इस बात की आश्वस्ति मैं आपको देती हूं, आपको कहीं भी हानि नहीं होगी। ये जो पालक की दृष्टि होती है, यह दृष्टि देवी अहिल्या के विचार विश्व में हम सबको दिखाई देती है। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि उनके राजकाज की बातों को अगर आज हम देखें, उनके राज्य प्रबंधन के लोक कल्याणकारी कामों को यदि हम देखें तो हमको ध्यान में आता है, जैसे शिवाजी महाराज का। मैं बार बार कहता हूं कि इन दोनों आदर्शों को यदि आप समकक्ष रख करके देखेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि ठीक शिवाजी की तरह का व्यवहार आपको देवी अहिल्याबाई के राजकाज में भी दिखाई देता है। छोटी छोटी बातें होती है। बाजीराव पेशवा की मृत्यु हुई, दुर्भाग्य से वह स्थान महेश्वर के पास में, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, ये सनावद के पास में। हम लोग इन दिनों मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय को बातचीत करके और उस समाधि स्थल को जरा अच्छा स्वरूप दे रहे हैं। बाजीराव पेशवा को वे अपना भाई मानती थी। बाजीराव पेशवा की जब मृत्यु हुई तो उनके 13 दिन के उत्तर कार्य के लिए उन्होंने कुछ दान पुण्य करना, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना और इस निमित्त कुछ काम करना, ऐसा सोच करके कुछ व्यय किया। जब हिसाब किताब आया तो देखा कि राजशाही खर्च में उसको जोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा ये तो मेरे भाई के लिए किया हुआ उत्तर कार्य है, इसको राजकाज में क्यों जोड़ा? कहा एक ही तो बात है, आपके भाई हैं, आप महारानी हैं, आपके आज्ञा से हमने ये सब व्यय किया। कहा नहीं, उस समय एक खासगी ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। आप इस कुछ कुछ बातें जरा ध्यान करते जाना। आज के युग में जिस ट्रस्ट डीड की हम बात करते हैं, जिस न्यास भाव की हम बात करते हैं, समाज का पैसा, राष्ट्र का पैसा, सरकार का पैसा, उसको कैसा उपयोग करना, किस ढंग से उपयोग करना। शिवाजी महाराज की बार बार मैं चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि बार बार वहीं वहीं ध्यान जाता है, क्योंकि उनको हमने ज्यादा पढ़ा है। शिवाजी महाराज जब हिंदू पदपादशाही की स्थापना कर चुके तो अनायास एक दिन समर्थ रामदास उनके द्वार पर पहुंचे और भिक्षाम देहि कह करके उन्होंने आवाज लगाई।
शिवाजी महाराज के हाथ पैर थरथर कांपने लगे। जिन गुरु ने मुझे तैयार किया, जिन्होंने मेरा अस्तित्व तैयार किया, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं इस हिंदू पदपादशाही की स्थापना कर सकूं, वे आज मेरे द्वार पर खड़े होकर के भिक्षा मांग रहे हैं। अंदर से शिवाजी महाराज निकले और एक कागज का छोटा सा पुर्जा, एक पर्ची लिख करके उन्होंने समर्थ रामदास की झोली में डाल दी। समर्थ रामदास ने आश्चर्य से झोली में से निकाली और देखा, उस पर लिखा था, अपना संपूर्ण साम्राज्य आपके चरणों में अर्पित करता हूं। उन्होंने कहा, यह क्या किया शिवा? इस सन्यासी को यदि राजकाज का मोह होता तो यह भिक्षा क्यों मांगता घर घर जाकर के? मुझे यह सब नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं बनने वाला हूं, मैं सन्यासी हूं। शिवाजी ने कहा, अब चूंकि गुरु के चरणों में मैं राज्य को अर्पित कर चुका हूं, इसलिए अब पुनः इसका राजा बनकर के इस राजकाज को नहीं चला सकता। समर्थ रामदास ने मध्य मार्ग निकाला। उन्होंने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो ऐसा करो कि आज से गुरु आज्ञा के रूप में इस आज्ञा को स्वीकार करो, तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर के आज से इस राजकाज को चलाओ। कहा, ठीक है, गुरु की आज्ञा है तो स्वीकार करता हूं, लेकिन ठीक भरत की तरह, जैसे उन्होंने प्रभु राम की चरण पादुकाएं रख करके राम राज्य का संचालन किया था, उस तरह से आज से यह आपका साम्राज्य मैं संचालित करूंगा। लेकिन गुरु मंत्र तो चाहिए, मेरे लिए गुरु मंत्र क्या है? तो समर्थ रामदास ने एक बहुत सुंदर वाक्य उस समय कहा। उन्होंने कहा, शिवा, जब भी राजकाज चलाओ तो एक वाक्य याद रखना, राजा किसी भी राज्य का उपभोग शून्य स्वामी होता है। आज के युग में सरकारी अधिकारियों के द्वारा शासन के पैसे का दुरुपयोग करना, शासन के वाहन का दुरुपयोग करना, शासन के बंगलों का दुरुपयोग करना, ये जब हम देखते हैं, केवल शासकीय अधिकारियों के द्वारा नहीं, समाज जीवन में काम करने वाले लोगों के द्वारा भी, हम सब भी कई बार अनुभव करते होंगे कि हम सब जब व्यक्तिगत रूप से आत्मावलोकन करते हैं तो कोई अपने आप को दूध का धुला नहीं पाता। ऐसी स्थिति में शिवाजी के उस एक वाक्य को आदर्श बना करके देवी अहिल्याबाई राजकाज का संचालन कर रही हैं। ये बाजीराव पेशवा के उत्तर कार्य के निमित्त किया हुआ धन खासगी ट्रस्ट से प्रदान किया जाएगा, ये कोई छोटी घटना नहीं है उस युग की। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार उनके जीवन की कई सारी घटनाओं को मैं देखता हूं। जैसे एक बार एक स्थान पर उल्लेख आता है, एक विधवा माता उनके पास आई और कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है, आसपास के जिन लोगों की मेरी संपत्ति पर कुदृष्टि है, वे लोग मुझे गोद भी नहीं लेने देना चाहते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं, झांसी की रानी का समय भी लगभग उसी के आसपास का है। वहां भी वही समस्या थी कि आप गोद नहीं ले सकती, दत्तक पुत्र को राज्य नहीं दे सकती। तो उस विधवा ने कहा कि मेरी पूरी संपत्ति आप राजसात कर लीजिए। अथाह धन था, देवी अहिल्याबाई चाहती तो तुरंत उस धन को राजसात कर सकती थी। सारे मंत्रियों ने उनको कहा कि इतना धन राज्य को मिल रहा है तो सोचने की क्या आवश्यकता है। देवी अहिल्याबाई ने कहा, मेरे राज्य का खजाना कभी भी इस प्रकार के धन से नहीं भरा जाएगा। एक विधवा मां के धन को हम अगर कब्जा करेंगे, अतिक्रमण करेंगे, यह अतिक्रमित धन मेरे राज्य में नहीं आ सकता। और यह कहकर के उन्होंने उसका तुरंत परित्याग ही नहीं किया, बल्कि उस मां से कहा कि मां, अगर सचमुच आप चाहती हैं तो आप दत्तक पुत्र को रखिए, आप पुत्र को गोद लीजिए, उस पूरी प्रक्रिया की रक्षा करने की जवाबदारी राजशाही की है, मैं उसकी रक्षा करूंगी। कोई आसपास का व्यक्ति आप पर कुदृष्टि नहीं डाल सकता। लेकिन यदि सचमुच आपको लगता है कि इस धन का सदुपयोग करना है तो आप ऐसा करो, मैं आपको कुछ स्थान बताती हूं, धार्मिक स्थल हैं, उनके जीर्णोद्धार के लिए अपने जीवन भर की संचित पूंजी को अगर आप लगाएंगी तो केवल यह लोग नहीं, वह लोग भी हमारा सुधर जाएगा। धर्म की प्रेरणा देने का काम ऐसे समय पर भी करना, मुझे लगता है कि ये जो खजाना हमारा अधर्म से नहीं भरेगा, यह जो एक सूत्र वाक्य है, यह शिवाजी के उसी सूत्र वाक्य से आता है। ये जो प्रेरणा है पूरी की पूरी। खंडेराव जिस समय लगातार नशे में प्रवृत्त रहते हुए भी बार बार जब उनको प्रेरित किया, आज की बहनों को शायद यह सुनकर के आश्चर्य लगेगा कि उस युग में यह बहन अपने पति को कहती थी कि तुमको युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिए, आप शोभा नहीं देते यहां पर शयन कक्ष में सोए हुए नशे में। और अपने पति को प्रेरित करने के लिए कैसे भी करके वो बाहर निकले, थोड़ा सा वीरोचित धर्म का पालन करें। तो क्या कहा, कम से कम शिकार करने तो जाया करो। अब शिकार करने अगर जाना है तो शस्त्र चलाना सीखना पड़ेगा।
तलवार भी सीखना चाहिए, बंदूक भी सीखना चाहिए। शिकार करने का शौक लगाना यह देवी अहिल्याबाई का मंतव्य नहीं था, लेकिन शस्त्र संचालन इस माध्यम से सिखाया। युद्ध भूमि में जब वो युद्ध कर रहे थे, किसी ने, गुप्तचर ने आकर के सूचना दी कि वे युद्ध भूमि में भी शराब से दूर नहीं हो पाए हैं, वहां पर भी कुछ स्त्रियों का प्रवेश उनके टेंट में होता है। स्वयं पहुंच गई युद्ध भूमि में। उस युग में माता अहिल्या का युद्ध भूमि में जब पति युद्ध कर रहे थे, लोगों को लगता होगा कि जाना आवश्यक था क्या, या वे जा सकती थी क्या, ये कोई प्रश्न नहीं। वहां जाकर के उनको नींद से जागृत किया। मुझे कई बार लगता है कि वे ऐसे समय पे रत्नावली हो जाती हैं। मेरी इस भौतिक देह में आपको प्रीति है, यही प्रीत अगर राम से लगाते तो शायद तुम्हारा भव तर जाता। यह बात जब रत्नावली ने तुलसीदास को कही थी, ठीक वही भाव लेकर के देवी अहिल्याबाई ने उनको कहा, और उनकी वाणी का यह प्रभाव था कि उसके बाद खंडेराव ने लगातार शाक्त धर्म का पालन किया, क्षत्रिय होकर के लगातार युद्ध लड़े, और आगे के जीवन का जितना सकारात्मक पक्ष उनके पति का दिखाई देता है, हालांकि बाद में बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाए, और लेकिन ये उनके जीवन का सौभाग्य रहा। एक राजा के लिए इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि वे युद्ध लड़ते हुए तोप का गोला सीधे सीने पर खाकर के मृत्यु को प्राप्त हुए। यह गौरवशाली मृत्यु अगर उनको प्राप्त हुई तो यह केवल पत्नी के उस प्रेरणादायी वक्तव्य के कारण से। लोगों को लग सकता है, लोगों को क्या लगेगा, स्वयं खंडेराव ने उनको कहा। इतिहास की एक बहुत अच्छी पुस्तक आती है, उस पुस्तक में अक्षरशः इस संवाद को उद्धृत किया गया है। खंडेराव कह रहे हैं कि तुम तो चाहती ही हो कि मैं युद्ध में जाकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। कितना बड़ा आरोप था उस युग का देखा जाए तो, लेकिन विचलित नहीं हुई देवी अहिल्याबाई। उनके कई कामों को मैं जब कई बार देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम यानी जब पति की मृत्यु हुई तो वह युग हमको पता है कि कई बार बहनें सती हो जाती थी। उन्होंने भी कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए। ससुर मल्हार राव ने उस युग में अपनी पगड़ी बहू के पैरों में रख दी, कहा कैसी बात करती हो, मैं लगातार पेशवाओं के युद्ध का संचालन करने के लिए बाहर रहता हूं, तुम भी अगर ऐसा करोगी तो इस राज को कौन पालेगा, ये प्रजा तुम्हारे भरोसे में छोड़ कर जाता हूं। बेटा तो चला ही गया है, तुम्हारा पति चला गया है, तुम भी यदि इस तरह से प्राण त्याग दोगी तो क्या होगा। ससुर के उस आदेश की पालना करके ठीक शिवाजी की तरह, जैसे उन्होंने कहा था ना समर्थ रामदास ने कि मेरे प्रतिनिधि बन करके, उन्होंने कहा मेरे लिए आपकी आज्ञा शिवाज्ञा है, और इसलिए मैं आज से यह संपूर्ण राज्य शिव को अर्पित करते हुए शिव की प्रतिनिधि बनकर के इस राज्य का संचालन करूंगी। आप देवी अहिल्याबाई का कोई भी चित्र उठा करके देखिए, सफेद सूती साड़ी में सादगीपूर्ण उस व्यक्तित्व का एक अनिवार्य हिस्सा कोई है तो हाथ में पकड़ा हुआ वह शिवलिंग है। शिवाज्ञा से राज्य का संचालन करना, ये कितनी बड़ी बात होती है। और मुझे लगता है कि उस युग में उन्होंने इतना नवाचार किया राजकाज में, मुझे कई बार आश्चर्य लगता है। मैं चूंकि मध्य प्रदेश के उस नगर का प्रतिनिधित्व करता हूं जो 7 वर्ष से लगातार स्वच्छता में प्रथम क्रम पर है, इंदौर महानगर। कई बार मैं सोचता हूं कि आखिरकार इंदौर नगर को अत्यधिक स्वच्छ रखने का जिस काम का जिम्मा वहां के सामान्य जन ने लिया है, यह आया कहां से होगा। देवी अहिल्याबाई के चार्टर प्लान को आप एक बार देखिए, जो राजकाज चलाने के जो मुख्य सूत्र हैं उसमें उन्होंने ये स्पष्ट कहा है, यदि कोई व्यक्ति राज्य में गंदगी फैलाता है उसको दंडित करने का विधिवत प्रावधान उस युग के संविधान में किया गया। पहली बार उस युग में स्वच्छता का अभियान। और केवल उतना ही नहीं, आज गुजरात ने तो इस राष्ट्र को ऐसा राष्ट्र प्रधान दिया है, हम सब लोग जिस बात का गौरव अनुभव करते हैं, स्वच्छता भी उन्हीं के मानस से निकली हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में कई बार आधुनिक संदर्भों में देवी अहिल्याबाई को देखता हूं तो मुझे आश्चर्य लगता है। उस युग में राज्य से आर्थिक संसाधन देकर के ऐसे लोग जिनके सिर पर छत नहीं है उनके गृह निर्माण करवाने का काम देवी अहिल्याबाई कर रही है। केवल ऐसा नहीं कि देवालय बनाने का काम, यह आज के प्रधानमंत्री आवास योजना से मैच करता है। उस युग में दहेज को विधिवत संविधान सम्मत अपराध घोषित करना, कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी या विवाह करेगा न तो दहेज देगा, न कोई दूल्हे का माता पिता दहेज मांगेगा, यदि मांगते हैं तो वो संविधान के तहत अपराधी होंगे। आधुनिक युग में यह कानून बनने में कितने वर्ष लग गए।
सती प्रथा समाप्त करने की बात को लेकर के आज जो इतिहास पढ़ाया जाता है उसमें हम राजा राममोहन राय का नाम पढ़ते हैं, लेकिन उस युग में स्वयं सती नहीं होना, पुत्र की मृत्यु अपनी आंखों के सामने देख लेने के बाद उनकी दोनों पत्नियों को इस बात के लिए आश्वस्त करना कि तुमको भी सती होने की आवश्यकता नहीं है, यह काम देवी अहिल्याबाई उस समय कर रही थी। हम आज के युग में जिसको टोल टैक्स कहते हैं, यह टोल टैक्स भी आपको देवी अहिल्याबाई के विचार विश्व में दिखाई देता है। और इस टोल टैक्स का कितना सुंदर उपयोग, मैंने जिस भिल्ल समस्या का उल्लेख प्रारंभ में किया था, उस युग में अपराध वृत्ति में लगे हुए भिल्ल समाज को मुख्य समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए देवी अहिल्याबाई ने कहा कि इनका अपराध तो छुड़वा दूंगी, लेकिन इनके पास खेती के लिए जमीन नहीं है, इनके पास अन्य कोई इस प्रकार की वृत्ति नहीं है कि वो अपना जीवन पालन कर सके, तो ये जीवन यापन करेंगे कैसे। महाराष्ट्र से लेकर के शेष संपूर्ण देश में तीर्थ यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों को आग्रह किया, आज का हमारा यही राजमार्ग था, वो गुजरात से मध्य प्रदेश में जहां प्रवेश करते हैं वही झाबुआ, वही अलीराजपुर, दाहोद के आगे। भिल्ल समाज को आपको एक प्रकार का कर देना होगा, तीर्थ कर देना होगा। यह तीर्थ यात्रा करते समय जो कर दिया जाएगा यह जजिया जैसा नहीं होगा कि जबरदस्ती वसूली कि तुम तीर्थ कर रहे हो इसलिए, यह एक प्रकार का दान है। इस भाव को संपूर्ण विश्व के, संपूर्ण भारत के तीर्थयात्रियों में विकसित करना। देश किसी एक व्यक्ति की बात मानता है क्या? जब राजस्थान का कोई तीर्थयात्री आता होगा उसको क्या लेना देना, हमारे राजा तो छत्रसाल है, हमारे राजा तो महाराणा प्रताप है, हमारे राजा तो अमुक है, हम देवी अहिल्याबाई का कहना क्यों माने। लेकिन भील समाज को स्वाभिमान के साथ खड़ा करने का काम इस कर में से किया। यह उस युग का टोल टैक्स था एक प्रकार का, आज राजमार्ग के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग किया जाता है, उस युग में समाज के अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग किया गया। तो कहने का तात्पर्य रूढ़ियों के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े होना, और ये सारे काम उन्होंने इतने कुशलता से किए। उनके एक एक पर्यावरण को लेकर के आज पर्याप्त बात होती है। आपको आश्चर्य होगा, उस समय उन्होंने एक 9-11 सिद्धांत दिया था। आप 11 वृक्षों का रोपण करके उनको बड़ा करिए, उससे प्राप्त होने वाले संसाधनों, और ये कहां लगाना है, आपके पास व्यक्तिगत जमीन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सरकारी जमीन पर लगाइए, लेकिन वहां लगाने के बाद इन 11 पेड़ में से 9 पेड़ से प्राप्त संपदा पर राज्य का अधिकार रहेगा, 2 पेड़ से प्राप्त संपदा पर आपका व्यक्तिगत अधिकार रहेगा। 9-11 का सिद्धांत उस युग में देना, सरकारी जमीन पर वृक्ष बो करके उस पर्यावरण को समृद्ध भी करना। और ये सारे के सारे फलदार वृक्ष होते थे, पीपल, बरगद, जामुन, कटहल, आम, ऐसे सारे वृक्षों को बोना। आज हमारे यहां पर इंदौर में जितने बाग दिखाई देते हैं, चंपा बाग, ये बाग, वो बाग, कम से कम 50 बाग मोहल्लों के नाम है, क्षेत्रों के नाम है। नवलखा क्षेत्र है, वहां कोई हीरो के 9 लखा हार थोड़ी बिकते थे, 9 लाख पेड़ वहां पर हुआ करते थे। ये सब क्यों थे? आज इंदौर की जनता ने अगर उस पर्यावरण को कम किया है तो मुझे लगता है केवल इसलिए कम किया कि हमने माता अहिल्याबाई के उस संदेश को स्वीकारा नहीं ठीक ढंग से। लेकिन पर्यावरण की उस तरह की चिंता करना, वन संपदा का संरक्षण, प्राणियों के प्रति अनुराग, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा। उस युग में देवी अहिल्याबाई ने कहा कि आप अपने अपने खेतों में खेती तो करिए, लेकिन सरकारी जमीन पर भी आप जोत करके खेत तैयार कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी है कि आप अपने खेतों में ये जो पशु होते हैं, गाय होती है, सांड होते हैं, बैल होते हैं, बछड़े होते हैं, ये सब आपके खेतों में नुकसान करते हैं तो आप इनको प्रताड़ित करते हैं, मारते पीटते हैं, भगाते हैं। आप कृपा करके कुछ ऐसी जमीन बो दीजिए और उसमें ऐसी फसलें बो दीजिए, चारा बोइए, अलग अलग तरह की चरनोई बोइए, और वहां पर मुक्त रूप से ये सारे प्राणी चर सके। इतना ही नहीं तो पक्षियों को वहां पर आमंत्रण देने के लिए वहां पर कुछ अनाज के दाने छिड़किए उस खेतों में। यह व्यवस्था उस युग में बनाना। हम पर्यावरण की बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग कल्पना कर सकते हैं देवी अहिल्याबाई ने कितना बड़ा उस समय काम खड़ा किया था। इतना ही नहीं तो जिस जल की हम बात करते, जलाशयों की शुद्धि, नए जलाशयों का निर्माण, कुएं का निर्माण, बावड़ी का निर्माण, इसे अनेक काम, घाटों के निर्माण, तो महेश्वर में, केवल महेश्वर में 28 घाट का उल्लेख आता है। महेश्वर का एक ही घाट इतना विशालतम है जिसको आप कई फिल्मों में देख चुके हैं। मणिकर्णिका जो झांसी की रानी पर फिल्म बनी थी, अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी उसमें भी, और अब तो वहां पर सैकड़ों फिल्मों का शूटिंग का काम चलता रहता है। इतना सुंदर घाट वहां पर निर्माण करने का काम भी तो मां ने किया था।
सारे देवालय बनाने का काम। आप जहां जहां पर हमारे देवालयों को पद दलित करके मुगल आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था, वहां पर हिंदू समाज के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए देवी अहिल्याबाई ने एक नए मंदिर का निर्माण खड़ा कर दिया उनके पास में जाकर के कि ये मंदिर ध्वस्त हुआ, कोई समस्या नहीं, यहां पर हम एक नया मंदिर निर्माण करेंगे। क्या आवश्यकता थी उनको वहां से अपने राजकाज से धन लगा करके? और सुदूर क्षेत्रों में, आप तमिलनाडु में चले जाइए, आप रामेश्वरम में चले जाइए, रामेश्वरम में आपको देवी अहिल्याबाई के बनाए हुए मंदिर मिलेंगे। स्वतंत्रता के बाद हम सब लोगों ने धर्मनिरपेक्षता के नाम पर दरअसल जो सबसे बड़ी हानि भोगी, वह हानि उस युग में हम सबको लगता है कि देवी अहिल्याबाई ने हम सब लोगों को यह संदेश दिया कि राजा का धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त होना कोई अपराध नहीं होता है। और इतनी सारी बातें, मुझे लगता है कि कई चीजों का उल्लेख करें तो बहुत समय भी लगेगा, लेकिन जल्दी से मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। एक अनूठा कूटनीतिक निर्णय देवी अहिल्याबाई का। देवी अहिल्याबाई को दरअसल पता लगा कि गंगोबा के भड़काने से उस समय राघोबा ने उनके राज्य पर आक्रमण किया है। राघोबा की सेना बहुत बड़ी है, देवी अहिल्याबाई के पास उतनी बड़ी सेना नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने राज्य की 500 बहनों को तैयार किया। का शस्त्र संचालन करने वाली 500 बहनों की एक सेना में तैयार कर रही हूं, मेरे राज्य की सेना युद्ध नहीं करेगी। राघोबा को केवल एक पत्र लिखा, राघोबा का कहा कि तुम युद्ध के लिए आ तो रहे हो, लेकिन यहां पर मैं 500 स्त्रियों की सेना लेकर के तुम्हारा मुकाबला करूंगी। जैसा कि तुम सोचते हो कि तुम युद्ध जीत जाओगे, यदि युद्ध जीत गए तो इतनी सारी स्त्रियों की हत्या करने का पाप तो तुमको लगेगा ही, लोग तुम्हारे मुंह पर थूकेंगे कि तुमने स्त्रियों की सेना की हत्या करके, स्त्रियों की हत्या करके और विजय प्राप्त की। और यदि तुम हार गए तो सारी दुनिया तुम्हारे मुंह पर फिर भी थूकेगी, अरे कैसा राजा था, स्त्रियों से हार गया। और आश्चर्यजनक रूप से राघोबा ने तुरंत पत्र लिख करके कहा, मैं तो आपको सांत्वना देने आया था। आप कल्पना करिए समय कैसा है, पुत्र की मृत्यु के समय का समय। न्याय की प्रक्रिया ऐसी कि केवल उनको यह पता लगा, इंदौर कभी आप लोग गए होंगे तो एक स्थान का नाम मैं अंत में लूंगा, उनको यह पता लगा कि उनके पुत्र ने एक तेज घोड़ा दौड़ाते हुए गाय के एक बछड़े की हत्या कर दी है। पत्नी के पास पहुंची, बहू के पास, बहू से जाकर के कहा, बहू आज बड़ा संशय है, न्याय करने में दिक्कत आ रही है। कहा, मां आपको कैसे समस्या आ सकती है, आप तो इतना न्यायप्रिय हैं। कहा, दिक्कत यह कि एक व्यक्ति ने एक मां की उपस्थिति में उसके पुत्र का वध कर दिया है। कहा, फिर क्या है, उसकी मां के सामने ही उस पुत्र की उसकी हत्या कर देना चाहिए, उसको मृत्युदंड देना चाहिए, उसकी मां के सामने ही उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। कहा, तुम सच कह रही हो? कहा, बिल्कुल ठीक है। जाकर के पुत्र को मृत्युदंड, एक मां अपने पुत्र को मृत्युदंड दे रही है। लेकिन आश्चर्य यह है, यह भारत की भूमि है जिस समय एक, जैसे संभवतः वो घटनाक्रम शायद या तो रथ के पहिए से कुचल करके मरे थे, या हाँ रथ के पहिए का घटनाक्रम था, तो ठीक ऐसा एक रथ छोड़ा गया। लेकिन जिस गौ माता के बछड़े की मृत्यु हुई थी, आश्चर्यजनक रूप से वो गौ माता सामने आ गई और आकर के गर्दन हिलाने लगी। मना कर दिया कि एक और पुत्र की मां के सामने मृत्यु होते में नहीं देख सकती। और जिस स्थान पर गौ माता आड़े आकर के उस पुत्र की रक्षा कर रही थी, आज वहां पर इंदौर का आड़ा बाजार कहलाता है। आड़ा बाजार बहनों के श्रृंगार सामग्री का एक बहुत बड़ा केंद्र है, राजवाड़ा के ठीक पास में। उस आड़ा बाजार का नामकरण उस घटनाक्रम से हुआ। और आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि जिस समय माता अहिल्याबाई अपने प्राणों का त्याग कर रही थी, एक न्याय का घंटा वहां पर राजवाड़ा पर बंधा रहता था। गौ माता ने आकर के रस्सी पकड़ी और इतनी जोर जोर से उस घंटे को बजाना शुरू किया कि वो घंटा अपने लोहे की सांकलों में जहां बंधा था उससे टूट करके नीचे गिर गया। लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कोई गौ सेवक इस दुनिया से चली गई है, जबकि उस समय कोई न्याय नहीं चाहिए था। लेकिन गौ माता का वह संकेत हम सब लोगों के लिए दरअसल एक घटना नहीं, प्रेरणा है। आज भी हम सब लोग जब पॉलीथीन फेंक देते हैं, कई बार हम सबको लगता होगा कि भाई इससे गौ माता को नुकसान हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, अब सब्जी लेकर के किस में आए, दूध लेकर किस में आए। लेकिन ऐसे समय पर पर्यावरण की चिंता करते समय गौ माता की चिंता भी हम सब लोगों को करना पड़ेगी। कई बातें हैं, बहुत सारी बातों को मैं जल्दी जल्दी इस समय छोड़ रहा हूं, लेकिन एक बात अवश्य मैं कहना चाहता हूं कि इस बात को हम अनुभव करें
कि माता अहिल्याबाई ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के जितने परिजनों की मृत्यु देखी, आप कभी पूरा का पूरा, चूंकि ये एक व्याख्यान का विषय नहीं हो सकता और चूंकि विषय को जल्दी से समाप्त करना है, इस कार्यक्रम की भी समय सीमा है, आप सबकी भी व्यस्तता है, लेकिन आप जब उनका जीवन चरित्र पढ़ेंगे, ससुर की मृत्यु, सास की मृत्यु को देखना, पुत्र की मृत्यु को देखना, बहुओं की मृत्यु को देखना, पुत्री मुक्ताबाई की मृत्यु को अपनी आंखों से देखना, दामाद की मृत्यु को देखना, पोते की मृत्यु को देखना, नाती की मृत्यु को देखना, इतनी मौतें एक के बाद एक देखते रहने के बाद भी ईशान भाई जिस बात का उल्लेख कर रहे थे, 30 वर्ष का राजकाज और उसमें एक भी विपर्य नहीं। आज जो लोग राजकाज में लगे हुए हैं, उनके लिए देवी अहिल्याबाई कितना बड़ा प्रेरणा का स्रोत हो सकती है, इस बात को हम लोगों को अनुभव करना चाहिए। और इसलिए मैं केवल अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि जिस बात का उल्लेख ईशान भाई ने किया था, आज के युग में हम सब लोग कुछ शब्द सुनते हैं, प्रतिभा बहन यहां पर बैठे हैं तो लगातार उनके समय में भी स्त्री स्वावलंबन के कई काम चल रहे होंगे। स्त्री स्वावलंबन को लेकर के इतना बड़ा काम देवी अहिल्याबाई ने खड़ा किया। महेश्वरी साड़ी इस समय बहनों की सबसे पसंद की साड़ी मानी जाती है। यह महेश्वरी साड़ी बनना क्यों प्रारंभ हुई? उस युग के दिवंगत सैनिकों की पत्नियों को स्वावलंबी बनाने के लिए। सेना में आकर के जो सैनिक शहीद हो जाते थे, हुतात्मा हो जाते थे, उनकी पत्नियां स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर सके, बुनाई का प्रशिक्षण करवाया। उन सब बहनों को कहा कि आप साड़ियां बनाइए। उनकी बनाई हुई साड़ियों की आज के युग में आंग्ल भाषा के शब्द का प्रयोग करूं, ब्रांडिंग में करूंगी, मार्केटिंग में करूंगी। आप केवल बना बना करके दीजिए, पूरे भारत में उसके विक्रय का काम राज्य संभालेगा। कितना बड़ा उपक्रम था उस युग का। और केवल यही नहीं तो स्वदेशीकरण जिसको हम कहते हैं, शस्त्र। जब मैं प्रारंभ का कुछ इतिहास पढ़ रहा था तो मुझे आश्चर्य लगा, देवी अहिल्याबाई के पास जितनी सेना थी उसका उल्लेख, इतने पदाति थे, इतने घुड़सवार थे, और शस्त्र कितने थे? 3 बंदूक। एक राज्य को चलाने के लिए 3 बंदूक। अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजों का जमाना आ गया था, तोप लेकर के आ गए थे गोरे अंग्रेज, उनसे भी युद्ध करना था। उनको दिखाई दे रहा था कि ये सब अंततः आकर के हम पर भी आक्रमण करेंगे। अंग्रेजों ने कहा कि बंदूकें हम बहुत अच्छी बनाते हैं ब्रिटेन में, आप हमसे बंदूकें खरीद लो। 3 बंदूक खरीदने के बाद माता अहिल्या ने कहा कि अब इन बंदूकों का निर्माण हमारे यहाँ की शस्त्र निर्माणियों में होगा, अपने कारखाने हम खोलेंगे, हम खुद शस्त्र बनाएंगे। उनका सिक्का जो चलता था, उस सिक्के को बड़ा विद्रूप प्रकार का हुआ करता था, जल्दी मेला हो जाता था। अंग्रेजों ने कहा हमारे यहाँ का स्टील बहुत उन्नत है, हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, हम अच्छे चमकीले, चमकदार, थोड़ी सी चांदी भी उसमें मिश्रण करेंगे, कुछ स्टील लेंगे, बढ़िया चमकदार सिक्के देंगे। उन्होंने कहा मेरे सिक्कों की चमक उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी मेरे राज्य की चमक महत्वपूर्ण है। ये सिक्के मैं अपनी ही टकसाल में घड़ करके बनाऊंगी। ये जो स्वदेशी के प्रति आग्रह उनका हमको दिखाई देता है, ये आग्रह दरअसल हमारे निजी जीवन में आ सकता है क्या? देवी अहिल्याबाई का विचार विश्व बार बार केवल इसी बात की प्रेरणा देता है। मैं इस टकसाल निर्माण, इस शस्त्र निर्माण को जिस एक वर्तमान युग की घटना से जोड़ता हूं, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहता हूं, भले ही 3 मिनट का विस्तार हो जाए। लुधियाना में कश्मीरी कंबल हम सब लोग अपने घरों में ओढ़ते हैं। वो कंबल बनाने का बहुत बड़ा व्यवसाय था और पंजाब के कई महानगरों तक फैला। लगभग 200-300 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर की परिधि में कई फैक्ट्रियां थी। देखते ही देखते पूरा व्यापार ध्वस्त हो गया, बिकना बंद हो गए। कहा क्यों कंबल बिकना बंद हुए? 300 रुपए में हम जो कंबल भारत भर में बेचा करते थे, वह कंबल 180 रुपए में चाइना से बनकर के हमारे मार्केट में बिक रहा है। 2 व्यापारी बहुत बड़े थे। उन्होंने कहा अच्छा चाइना से बन करके आता है, संभवतः गुजराती मानस का व्यक्ति होगा वो। उन्होंने कहा चलो चाइना चल करके देखते हैं कैसे बनाते हो। जाकर के कंबल बनाने की फैक्ट्री देखी, कौन सी मशीन से बनता है, मशीन का ब्रांड देखा, फोटो खींचा मोबाइल से, बनी हुई मशीन ताइवान की है। कहा ये तो इसका नहीं है, ताइवान की मशीन है। ठीक है, मशीन की डिटेल्स ले ली। रेयन जो वापरा जाता है, धागा वापरा जाता है, मटेरियल कहां से आता है? कहा ये तो अमुक देश से आता है। ठीक है, उस देश की किस कंपनी से आता है, उनका नाम ले लिया। वहीं से ताइवान की उस कंपनी को 2 मशीन ऑर्डर कर दी, दोनों व्यापारियों ने मिलकर के 2 मशीन ऑर्डर की। भारत जब पहुंची दोनों मशीनें, तो एक मशीन से प्रोडक्ट शुरू किया दोनों व्यापारियों ने साझेदारी में। एक मशीन उठा करके इंजीनियरों को दे दी भारत के। कहा ये इतनी महंगी मशीन है,
2-2 करोड़ रुपए की मशीन बेचते हैं ये लोग चाइना वाले, जबकि ये इनकी खुद की मशीन नहीं है, वहां से ला करके चाइना आती है, चाइना से हमारे यहाँ बिकने के लिए पहुंची। तो इतनी महंगी मशीन तो हमारे यहाँ के व्यापारी सब खरीद नहीं पाएंगे। इस मशीन को पूरा खोल करके पुर्जा पुर्जा कर दो, इसको हम भारत में कितने में बना सकते हैं? 90 लाख में इंजीनियरों ने बना दी 2 करोड़ की मशीन को। कहा ठीक है, अब बनने लगी, एक नई फैक्ट्री खोलो, केवल उसमें कंबल बनाने की मशीनें तैयार करेंगे। कंबल बनाने का व्यवसाय एक तरफ रह गया, मशीन बनाना शुरू की, उन मशीनों को पूरे क्षेत्र में फैलाया, और जिस कंबल को चीन का नालायक व्यापारी 180 रुपए में बेच रहा था, उसको भारत के व्यापारियों ने 150 रुपए में बेचना शुरू कर दिया बाजार। ये जो स्वदेशी का आग्रह है, ये जो राष्ट्रीय चेतना का उफान है, ये आज के युग में कहां कहां कैसे कैसे प्रकट हो सकता है, ये प्रेरणा हमको दरअसल देवी अहिल्याबाई के उस विचार विश्व में प्राप्त होती है। और इसलिए मैं अनेक बातें उसमें कर सकता हूं, लेकिन अभी करने की आवश्यकता नहीं। केवल एक बात कहकर के समाप्त कर रहा हूं अपनी बात को, कि उस युग में एक आंकड़ा मुझे प्राप्त हुआ, जो इस समय चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, तो व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कई बार सांख्यिकी आती है, तो हमारा मन बड़ा खराब होता है। हमारे सारे तीर्थों से, हमारे धर्म क्षेत्रों से, धर्म केंद्रों से पैसा सरकार के द्वारा सरकारी गल्लों में जाता है, और उसका व्यय अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर होता है। चर्च के भी निर्माण होते हैं, जीर्णोद्धार होता है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का जीर्णोद्धार होता है, पैसा हमारे तीर्थों से कमाया जाता है, व्यय वहां किया जाता है। ये सब सरकार की देखरेख में हो रहा है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र में भी हुआ। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना मैं बताना चाहता हूं कि उस युग में देवी अहिल्याबाई के एक हिसाब किताब का मैं उल्लेख पढ़ रहा था। एक छोटे से पीरियड में उनकी आय हुई 2,30,425 रुपए, और व्यय किया धर्मदाय पर 1,15,055 रुपए, देवस्थान में ठहरने वाले यात्रियों पर होने वाला व्यय 37,030 रुपए, देवस्थान की व्यवस्था पर 6,000 रुपए, कुल मिलाकर के 1,85,000 रुपए का व्यय हिंदू धर्म स्थलों पर वो करती है। अंतिम रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हम सब मिलकर के देवी अहिल्याबाई के उस विचार विश्व से प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो आने वाले समय में क्या हम सब लोग मिलकर के इस 300वें जयंती वर्ष में अपने शासन प्रशासन चलाने वाले इन पुरोधाओं को, इन नेतृत्वकर्ताओं को इस बात के लिए आग्रह कर सकते हैं? क्या यह आग्रह इतना तेज हो हिंदू समाज से कि हम सब लोग इस बात का आदर्श स्थापित कर सकें कि कम से कम आय जिन देव स्थानों से हो रही है, कृपा करके व्यय भी उन्हीं देव स्थानों पर होने लगे। मुझे लगता है यदि हम कर सके तो देवी अहिल्याबाई का यह जो संपूर्ण विचार विश्व है, यह सार्थक हो सकेगा। आज समय का विपर्य हुआ हो तो क्षमा चाहता हूं, और मैं बहुत आप लोगों ने जितनी शांति से बैठ करके सुना, मुझे लग रहा था कि पता नहीं इतिहास का विषय है, कुछ प्रबंधन का विषय है, कुछ अन्य प्रकार का है, तो शायद हो सकता है कि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि कुछ विस्तार हो गया। लेकिन चूंकि वर्ष भर हम सब लोगों को इस दिशा में सोचना भी है, काम भी करना है, इसलिए आज केवल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। મંચસ્થ મેયરશ્રીનો હું પરિચય આપીશ થોડો. શ્રીમતી પ્રતિભાબેન રાકેશકુમાર જૈન શાહીબાગ વોર્ડથી સતત ત્રીજી ટર્મથી કોર્પોરેટર છે. મહિલા બાળ વિકાસના ચેરપર્સન પણ રહી ચૂક્યા છે, અને વર્તમાનમાં અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાના મેયર અને પ્રથમ નાગરિક છે. એમનું સ્વાગત કરવા માટે હું દિનેશભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ મોમેન્ટો આપીને એમનું સ્વાગત કરે. હું માનનીય મેયરશ્રીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ 2 શબ્દ આ બાબતમાં કહે. સૌને મારા નમસ્કાર. આજના પૂજનીય લોકમાતા દેવી અહિલ્યાબાઈની 300મી જન્મ જયંતિ નિમિત્તે ભારતીય વિચાર મંચ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં મંચ પર ઉપસ્થિત વક્તા શ્રી ડૉક્ટર વિકાસ દવેજી, ઉપસ્થિત નિશાંતભાઈ અને ઉપસ્થિત પૂર્વ નેતા શ્રી ભાસ્કરભાઈ, રિક્રિએશન કમિટીના ચેરમેન શ્રી જયેશભાઈ, ઉપસ્થિત સહુએ સર્વમાન્ય મહાનુભાવોને મારા સાદર પ્રણામ. આજે મને અહીંયા પૂજનીય લોકમાતા અહિલ્યાબાઈ હોલકરજીના આ જન્મ જયંતિ
300મી પ્રસંગે અહીંયા ઉપસ્થિત થવાનો અવસર મળ્યો એ મારા માટે પરમ સૌભાગ્ય છે અને હું અત્યંત હર્ષની લાગણી અનુભવું છું. ને આજના આ દિવસે ભારતીય વિચાર મંચ દ્વારા અહિલ્યાબાઈજીના વ્યાખ્યાન અને પુસ્તક વિમોચનના જે કાર્યક્રમ લોકાર્પણનું અહીંયા કર્યું છે એ બદલ હું એમને અને એમની સમસ્ત ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. દેવી અહિલ્યાબાઈ એટલે વૈરાગ્ય અને પવિત્રતાની જીવંત મૂર્તિ, સુચિતા, પાવિત્ર્ય, લોકપરાયણતા, રાજવહીવટ, ધર્મપરાયણતા અને ડાહ્યાપણ જેવા જે ગુણ સંચય ધરાવતું જે વ્યક્તિત્વ છે એટલે કે પૂજનીય લોકમાતા દેવી અહિલ્યાબાઈ હોલકરજી. આપણી જે ભારત દેશની સનાતન સંસ્કૃતિની એક મહાન વિરાંગના તરીકે જે પૂજનીય લોકમાતા અહિલ્યાબાઈ હોલકરજી જે કવિથી માંડીને કિસાન સુધીના પ્રજાજનના સુખ દુઃખના સાથી બનવાની સાથે રણક્ષેત્રે સમારંગણની બની શત્રુઓને સંહાર્યા હતા. જ્યાં હમણાં જ વિકાસભાઈએ બધી વાત કરી છે અહિલ્યાબાઈજીની કે જે એમનું જીવન સંપૂર્ણપણે ભારતીય સંસ્કૃતિથી વરાયેલું હતું અને એ આપણા સૌના માટે પણ એક પ્રેરણાદાયી વ્યક્તિત્વ છે કે ભારત દેશની જે ધાર્મિક ચેતનાઓ જે સ્થાન છે એમના જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યા અને સાથે સાથે ચારે ધામમાં ધર્મશાળાઓ, ઉદ્યાનો, અન્ન ક્ષેત્રોની પણ સ્થાપના કરી અને શ્રદ્ધાળુઓ અને યાત્રીઓને સેવા કરવાનું પવિત્ર કાર્ય પણ કરેલ છે. તો એવા પૂજનીય લોકમાતા દેવી અહિલ્યાબાઈ હોલકરજીની આ 300મી જન્મ જયંતિએ હું એમને સતસત નમન કરું છું, વંદન કરું છું. વધુમાં પૂજનીય લોકમાતા દેવી અહિલ્યાબાઈ આ મહાન પ્રેરણાદાયી જીવનને જન જન સુધી પહોંચાડવા તેમના જીવનને સુંદર રીતે ડંકારતા પુસ્તકના વિમોચનની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું અને આપણે સૌએ પૂજનીય લોકમાતા દેવી અહિલ્યાબાઈ હોલકરની જીવનગાથાથી પ્રેરણા લઈ અને તેને આપણા જીવનમાં ચરિતાર્થ કરીએ એવી હું આપ સૌથી આશા રાખું છું. અને હમણાં જ જે વાત થઈ कि आपने कहा कि जो पर्यावरण के क्षेत्र में उस समय भी जो 9/11 जो वृक्षारोपण करने की जो भावना अहिल्याबाई जी की थी, तो वो मैं आज कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर भी आज के ही दिन 30 लाख वृक्षारोपण करने का एक संकल्प आज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया है. तो ये हमारे लिए उस समय का जो संकल्प आज हम सर चरितार्थ कर रहे हैं, ये अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए बहुत ही गर्व की बात है. और इसमें हमने सभी NGO और जो कंपनियां और जो पर्यावरण प्रकृति के जो प्रेमी हैं और जिनको कि हमें प्रकृति का जतन करना है, इस प्रकार के सभी व्यक्तित्व के साथ आज मीटिंग की थी. तो सभी का जो साथ और सहकार मिला है और उसमें हम सभी को साथ में मिलकर इस आयोजन को सफल बनाना है कि कोई भी एक व्यक्ति एक वृक्ष को वाव करके एक वृक्ष उगाकर और उसकी पूरी तरह से मावजत करे, उसको उछेर होने तक एक व्यक्ति एक वृक्ष की मावजत करे, तो अपने लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है उसे हम सभी साथ में मिलकर दूर करने का प्रयत्न करते हैं. तो ये हमारे लिए अभी आपने कहा तो मुझे भी ऐसा लगा कि आज ही हमने 30 लाख वृक्ष पूरे अहमदाबाद में करने का आज संकल्प किया है. तो हम सभी साथ में मिलकर आप सबका भी हमको सहयोग मिले ऐसी मैं आशा रखती हूँ. और आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद. वंदे मातरम. जय जय गढ़वी गुजरात. भारत माता की जय. ધન્યવાદ. આજે જે પુસ્તકનું વિમોચન છે તેના પરિચય માટે હું પંકજભાઈ પુરોહિતને વિનંતી કરીશ કે તેઓ સ્ટેજ પર આવે. પંકજભાઈ ભારતીય વિચાર મંચ ગુજરાત પ્રાંતના મંત્રી છે. નમસ્તે. પુસ્તકની ઘણી બધી વાતો વ્યાખ્યાનમાં આવી જ ગઈ છે એટલે હું સંક્ષિપ્તમાં ખાલી થોડા મુદ્દા મૂકી દઉં છું.
1916માં ગોવિંદરાવ કેશવરાવ જોશીએ લખેલા પુસ્તકનું આપણે ભારતીય વિચાર મંચે અનુવાદ કર્યો છે, જેનું આજે લોકાર્પણ થવાનું છે. એની ભૂમિકા મૂકતી વખતે લેખકે કહ્યું છે કે હિન્દી સાહિત્યમાં આવા મહાન જીવન ચરિત્રો વાર્તા સ્વરૂપે લખાયા છે, પણ આધારભૂત માહિતી સાથે કેટલાક તથ્યો પણ મુકાય એ ઓછું બન્યું છે. એટલે મારો પ્રયત્ન એવો છે, એવું આ લેખકે ભૂમિકામાં કહ્યું છે. એમણે 5 અંગ્રેજી પુસ્તકો, 4 મરાઠી પુસ્તકો અને 3 હિન્દી પુસ્તકોનો આધાર લઈને જે વાતો મૂકી છે પુસ્તકમાં, એના હું ખાલી થોડાક મુખ્ય મુદ્દા, કારણ કે વ્યાખ્યાનમાં લગભગ બધું જ આવી ગયું છે. સર જ્હોન માલ્કમ, એમનો ઉલ્લેખ વારંવાર આવે છે પુસ્તકમાં. એમણે ધ મેમરી ઓફ સેન્ટ્રલ ઇન્ડિયામાં જે લખ્યું છે કે એ શાસન વ્યવસ્થા, એમની ધર્મપરાયણતા, એ બધું સાંભળીને મધ્ય ભારતમાં આવ્યા ખરા, પણ શોધ કાર્ય આગળ વધાર્યું ત્યારે એટલા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા કે જે વર્તમાન સમયની જેટલી શાસન પ્રણાલી ચાલતી હતી, ઉત્તમ રાજ્ય વ્યવસ્થા જે કહેવાતી હતી, એમાં સર્વોત્તમ હતી એવું એમણે શોધ કાર્યના અંતે લખ્યું હતું. અને એની સત્યતા ચકાસવા માટે કોઈ જ્યારે શોધ કરતું હોય ત્યારે એમનેમ તો લખે નહીં, તો સત્યતા ચકાસવા માટે એમણે હોળકર પરિવારના જે વંશજો હતા અથવા એમના આશ્રિતો હતા એ બધાની સાથે રૂબરૂ મુલાકાતો કરીને જે વાતો લખી છે પુસ્તકમાં, એવા પુસ્તકોનો આધાર આ પુસ્તકમાં લેવાયો છે. કેટલાક જે તથ્યો એમાં છે, એમાં એવું હતું કે જે આવી જ ગયું છે કે માત્ર ધનનું ઉપાર્જન કરવું એટલો હેતુ નહોતો, એનો સંચય કરવો, એનું સુવ્યવસ્થા કરવી. એમની દૂરદર્શિતા જે દરેક જગ્યાએ દેખાતી હતી કે ખર્ચની જોગવાઈ એટલે સુધી કે એમના સત્કાર્યનું અનુકરણ અન્ય જે દાનશીલ મહિલાઓ હતી સિંધિયા પરિવારમાં, એ પણ કરવા માંડ્યા હતા. આ બધા તથ્યો એમણે મૂક્યા છે. એક વખત એવું બન્યું હતું કે એક પંડિત એમની સ્તુતિનું જ્ઞાન કરતો એક ગ્રંથ લખીને એમની પાસે પહોંચ્યા. એમને એવું હતું કે કંઈક માનધન મળશે, મહારાણી ખુશ થશે. એમણે લઈ તો લીધો, એમને માનધન પણ આપ્યું. પછી એમને જ કહ્યું કે આ ગ્રંથ તમે અહીંયા સામે નર્મદા નદીમાં પધરાવી દો, મારા દેખતા જ પધરાવી દો. એટલે એમની પરાકાષ્ઠા આ હતી કે આત્મસ્તુતિથી પણ એ ઘણા વિમુખ રહેતા હતા. રાજ્ય અને શાસનના જે મુખ્ય મુદ્દા છે કે જેનો ઉલ્લેખ છે પુસ્તકોમાં, તો ઘણી બધી વાતો છે. 120 પાનાનું પુસ્તક છે, 14 પ્રકરણો છે. એમાં મુખ્ય વાતો કે ધર્મ પર એ સતત આરૂઢ રહીને એમણે શાસન કર્યું. પ્રજાજન એનું નિવેદન જ્યારે દરબારમાં આવે ત્યારે છેક નજીક જઈને એનું નિવેદન મૂકી શકતા હતા. દેશ દેશાંતરોથી વેપારી ત્યાં વેપાર કરવા આવે તો એને નફો મળી રહે એનું પૂરતું ધ્યાન રાખતા હતા. એમના રાજદૂતો બીજા ઘણા બધા રાજ્યોમાં મૂકેલા હતા, મોટા મોટા રાજ્યોમાં, કલકત્તા, શ્રીરંગપટ્ટનમ, નાગપુર, એવા રાજ્યોમાં માળવા રાજ્યના રાજદૂતો રહેતા હતા. અને એવી જ રીતે માળવાના રાજ્યમાં જે બહારના રાજદૂતો રહેતા હતા એ ખૂબ પ્રસન્ન રહેતા હતા. પ્રભાવ એવો હતો એમની ધર્મપરાયણતાનો કે જે એક પરાકાષ્ઠાની વાત છે કે મુસ્લિમ શાસકો ઉપર પણ એ ધર્મપરાયણતાનો પ્રભાવ રહ્યો. તો એમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે નિઝામ, હૈદર, ટીપુ, અયોધ્યાના નવાબ, એ લોકો પણ આનાથી પ્રભાવિત થયેલા હતા. જે મંદિરોના નિર્માણની વાત થઈ, કૂવા, વાવ, ધર્મશાળાઓ, અન્ન ક્ષેત્રો, સદાવ્રતો, એમાં દૂરંદેશી કેવી હતી કે ખર્ચની જે જોગવાઈ કરી હોય એ એમની બિન હયાતીમાં પણ વર્ષો સુધી ચાલતી રહે. તો હમણે લખ્યું છે કે 1916માં એવું લખ્યું છે કે આજે 120મા વર્ષે પણ ત્યાં ખર્ચની વ્યવસ્થામાં કોઈ ગરબડ થઈ નથી. 120 વર્ષ પછી એમણે લખ્યું છે અને આજે પણ ચાલે છે. પુસ્તકમાં આ બધો ઉલ્લેખ છે. બરફથી ઢંકાયેલા જે પ્રદેશો હતા હિમાલયના, એવા ત્યાં વ્યવસ્થા એવી હતી કે જ્યાં પહેલાં તો તીર્થાટનમાં લોકો સીધું સામાન સાથે લઈને જતા હતા, તો ત્યાં કાષ્ઠની વ્યવસ્થા કરવી અને વર્ષભર ત્યાં એ વ્યવસ્થા રહે, આ વ્યવસ્થા કરવી. એવી રીતે દક્ષિણના મંદિરોમાં પ્રતિમાને દરરોજ ગંગાજળ ચઢાવવા માટે કાવડથી ઉત્તરમાંથી ગંગાજળ દક્ષિણના મંદિરોમાં પહોંચતું રહે, આ વ્યવસ્થા કરી હતી. તો આ દૂરંદેશી હતી. જે માર્ગોનું એમણે નિર્માણ કર્યું તેમાં પણ આ દ્રષ્ટિ હતી. આવી અનેક બાબતો પુસ્તકમાં છે. અને ઈશાનભાઈએ શરૂઆતમાં કહ્યું એમ આ આપણે શરૂઆત કરી રહ્યા છે. ખાલી એક એવું કહેવાય કે માહિતી આપતું પુસ્તક છે, બધા તથ્યો છે, આધારભૂત માહિતી છે, પણ આ આપણી શરૂઆત છે. આના પછી પણ આપણે જે ગ્રંથનું નિર્માણ કરવાના છીએ એમાં પણ આવી જ રીતે વધારે સામગ્રી ઉપલબ્ધ થશે. ધન્યવાદ. પુસ્તકના લોકાર્પણ માટે હું મંચસ્થ મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે તેઓ પુસ્તકનું લોકાર્પણ કરે. દેવી અહલ્યાબાઈ હોલકરનું પુસ્તક એક મહિલા મેયરના હાથે આપણે વિમોચન થતું જોઈએ, એનાથી વિશેષ શું હોઈ શકે. હવે હું ઈશાનભાઈને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આભાર વિધિ માટે. નમસ્કાર.
આજના આ શુભ અવસરે આપણા અમદાવાદ શહેરના પહેલા નાગરિક મેયર પ્રતિભાબેન અમારા કર્ણાવતી કેન્દ્રના કાર્યકર્તાઓના આગ્રહને માન રાખી અને અહીંયા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા એ બદલ આપણે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. એમણે પહેલાં એવું ભય વ્યક્ત કર્યો હતો કે કદાચ મારે વહેલું નીકળવું પડે વગેરે થાય, કારણ કે સ્વાભાવિક રીતે પુષ્કળ વ્યસ્ત સમયમાંથી આટલો સમય કાઢીને આવું, અને અત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે કયા પ્રકારનો સમય ચાલી રહ્યો છે. તો આપ અહીંયા અમારા આખા કાર્યક્રમમાં રહ્યા અને પુસ્તકનું લોકાર્પણ પણ આપના હાથે થયું એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. માનનીય ડૉક્ટર વિકાસ દવેજી, આપણા આમ તો વિદ્યાભારતીના એક સમય ખૂબ ગુજરાતનો પ્રવાસ કરનારા કાર્યકર્તા જ છે, એમના પરિચયમાં આ ના આવ્યું એટલે મારે આ વાત કરવી પડી. અને આપણા વિચાર વિશ્વમાંથી જ આવે છે, એમની ઘણી બધી વાતો ઉપરથી આપણને સ્વાભાવિક રીતે જે ધ્યાનમાં આવ્યું જ હશે. એમની સાથે જ્યારે પહેલાં ફોન પર મેં સમય લેવા માટે વાત કરી તો સ્વાભાવિક રીતે જ એમણે ઉમળકાભેર આ વાતનો સ્વીકાર કરી અને ત્યારથી માંડીને અત્યાર સુધી એક કાર્યકર્તાના ભાવથી જ આપણા આ કાર્યક્રમની અંદર એ જોડાયા. અને આ આખું વર્ષ જે ઉજવણી ચાલવાની છે, આ ઉજવણીની અંદર આપણને એમનો સહયોગ આખા વર્ષભર મળે એવું પણ આપણે આગ્રહ રાખીએ. અને આપણી સાથે આ પહેલી ઉજવણીની શરૂઆતના કાર્યક્રમમાં છે ઉજવણીના ભાગરૂપે, એટલે એમણે ખાસ કીધું કે આ તો વિષય તો નિરંતર ચાલતો રહેશે, પણ આ વર્ષની જે ઉજવણી પૂરી થશે ત્યારે પણ સંયોગથી આપણે સાથે રહીને આ કરી શકીએ. તો આપ અમારી સાથે એકદમ કાર્યકર્તાના ભાવથી જોડાયા અને એક ઉત્કૃષ્ટ વિષય આપે અહીંયા જ અમારા બધાની સામે પ્રસ્તુત કર્યો એ બદલ આપનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ આખો જ કાર્યક્રમ સ્વાભાવિક રીતે પ્રબુદ્ધજનો વગર તો શક્ય સ્વાભાવિક રીતે જ ના બને. તો આપ સૌ લોકો આ કાર્યક્રમની અંદર ખૂબ ઉત્તમ શ્રોતાના ભાવથી જોડાયા અને માત્ર આ કાર્યક્રમમાં જોડાયું નહીં, આ વિષયને આપ આપના સમાજના દરેક ક્ષેત્ર સુધી પહોંચાડવા માટે યથાયોગ્ય સંભવ તમામ પ્રયત્નો કરવાના જ છો. એ બદલ આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. અમદાવાદ મેનેજમેન્ટ એસોસિએશન આપણને નિરંતર આ પ્રકારે હોલ વગેરે આપતું જ રહે છે. ઉન્મેશભાઈ દીક્ષિત જે આપણને સતત મદદ કરે છે. આપ સૌનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે બાકી પણ જે મિત્રોએ વૈભવ વગેરે બધા લોકોએ જેટલો પ્રયત્ન કર્યો છે, આપ સૌનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સાથે એક બીજી નાનકડી વાત કહી દઉં, પંકજભાઈ અમારા મંત્રી તો છે પણ વિશેષ આ પુસ્તકના અનુવાદક પણ છે, એટલે પુસ્તકનો અનુવાદ પણ પંકજભાઈએ કર્યો છે. હવે આપણે વંદે માતરમ ગાન કરીશું અને પછી બધા છૂટા પડીશું.